Hello students and welcome back to our class. In today's class we are going to cover capacity to contract, consent and unlawful agreements. Now before we begin with our class today, I would like to discuss a few things with you. I came across some messages that you like my videos, some comments like that, and I am really honored that I could help you guys. Secondly, there are some inquiries related to if I'm making more videos or not. Yes, I'm making. You can hit the subscribe as well as the bell icon here and you'll be notified every time our new video is uploaded. We are taking it from the beginning. We have already uploaded all the parts related to our first unit, class 12th judiciary, and now it's our second unit going on topics of law. So yes, that is that. Now third topic is some of you are asking for solutions and how to write answers, and again for this we can arrange a pre-recorded or maybe a live session, whatever is comfortable with you guys. You can let me know in the comment section once again and we can go with the flow. If I'll get a good response, then I'll definitely upload a video related to answering, how you should answer, how you can fetch more marks. And begin with today's class. So today we are going to study about capacity to contract. A person who is major, that is above 18 years of age, is competent to enter into a contract and minors are not competent to enter into a contract. क्या कह रहा है कि major लोग होने चाहिए, above 18 होने चाहिए. The exception to this rule is that if a minor enters into a contract, the enforcement of such contract is beneficial for the minor, then it will not be held void. अब इसका एक एक्सेप्शन है, माइनर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल फॉर द माइनर, ओनली देन इट इज नॉट वॉइड, अदरवाइज इट इज वॉइड, अदरवाइज इट इज नॉट एलिजिबल. ओके. फर्दरमोर, अ पर्सन शुड also have sound mind and should not be disqualified by law and force. क्या कह रहा है, दिमाग से सही होना चाहिए इंसान और किसी भी लॉ प्रोसीजर के अंडर डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए. एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इफ द पर्सन इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड मेकिंग अ रैशनल जजमेंट, ही इज सेड टू हैव साउंड माइंड. साउंड माइंड क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे इंसान इस कैपेसिटी में हो कि वो समझ सके और एक रैशनल डिसीजन ले सके. Now here comes the list of people who are not competent to enter the contract. Minor हमने पढ़ ही लिया. Person with unsound mind, unsound मतलब जो साउंड नहीं है, जैसे कि idiots, lunatics, drunkards, जिन लोगों का understanding, level of understanding, level of mind and everything is below average, या फिर lunatics, या फिर lunatics मतलब पागल, या फिर drunkards जिनकी कैपेसिटी नहीं होती to enter into a कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, किसी सिचुएशन को उस टाइम पे समझने की कैपेसिटी नहीं होती है. दे हैव डिमिनिश्ड कैपेसिटी दैट टाइम व्हेन दे आर ड्रंक. पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. अब पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में कौन कौन आता है? एलियन एनिमीज, फॉरेन सोवरेन, इंसॉल्वेंट्स, कन्विक्ट्स, कॉर्पोरेशन, बैरिस्टर्स. राइट, दिस इज अ लिस्ट टू रिमेंबर. Illustration we have with us. A. Major offers to sell his coat for rupees 3,000 to B, a minor. B accepts the offer and pays rupees 3,000. A states that the contract is entered into with a minor and hence void. In this case, even if the contract is entered into with a minor, it is enforceable because it is beneficial to the minor and the minor has performed his part of obligation in the contract. अब हमें क्या illustration दिया है कि एक A है, एक B है. A मेजर है, B माइनर है. A ने B को ऑफर किया कि मैं अपना कोट तुम्हें 3,000 रुपये में बेच रहा हूँ. B ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और B ने उसे कंसिडरेशन यानी 3,000 रुपये दे दिए. उसके बाद ये कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, दिस इज नॉट एलिजिबल, दिस डू नॉट होल्ड एनी गुड. ठीक है, क्योंकि B इज माइनर. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज नॉट वॉइड. यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो लॉजिक है ए का, दिस विल नॉट वर्क. क्यों? क्योंकि इससे अब जो इसका पार्ट रह रहा है
कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज बेनिफिशियल फॉर बी फर्स्टली. सेकेंडली, बी हैज ऑल्सो परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट बाय पेइंग 3000 रुपीज कंसिडरेशन. ओके, कंसेंट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेंट. व्हाट इज कंसेंट? आपने एक ने ऑफर किया, आपने उसके बाद कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ऑफर आ गया, एक्सेप्टेंस आ गया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंसेंट. Consent is an important criteria while entering into a contract. When two person agrees on the same thing in the same sense, this is very important. When two person agree on the same thing in the same sense, it is termed as contract under section 13. ठीक है, दो लोग सेम चीज़ के बारे में सेम सेंस से बात कर रहे हैं. ठीक है, आप अगर किसी XYZ चीज़ के बारे में सेल परचेज के सेंस में बात कर रहे हो, तो दूसरी पार्टी भी उसी XYZ चीज़ के बारे में सेल्स परचेज के सेंस में ही बात कर रही है. ऐसा नहीं कि एक जना सेल्स की बात कर रहा है, एक जना रेंट की बात कर रहा है. नो नो नो. ओके, कंसेंट शुड बी फ्री एंड नॉट कॉज्ड बाय कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक. अब क्या कह रहा है कि कंसेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए. फ्री का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके के कोअर्जन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, मिस इंटरप्रिटेशन में, मिस रिप्रेजेंटेशन में, फ्रॉड में या मिस्टेक से नहीं गेन की होनी चाहिए. ठीक है, इफ कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी वन ऑफ द अबव सेड, देन द कंसेंट सो ऑब्टेन्ड इज नॉट फ्री. अगर आपने कोअर्जन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, इन सब चीज़ों से सामने वाली पार्टी की कंसेंट गेन की है, तो वो कंसेंट इज नॉट फ्री. इट बिकम्स voidable for the person whose consent is not free. अब what do we mean by voidable? बाकी सारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं. voidable is relatively a new concept आप लोगों के लिए. voidable is जब आपके ऊपर आ जाती है चॉइस कि आप इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं. आपको किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस में, किसी मिस रिप्रेजेंटेशन के अंडर मैंने अपना मकान बेच दिया. ठीक है, आपको उसके बाद पता चलता है दैट व्हाट आई वाज रिप्रेजेंटिंग वाज नॉट करेक्ट. ठीक है, वाज नॉट द क्लियर इंफॉर्मेशन. एंड उसके बाद आपके पास ये चॉइस है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज voidable कंडीशन. illustration, A threatens to kill B if he does not sell his house to A. ठीक है, ये क्या हो गया? coercion. B out of fear signs the contract for selling his house to A. Here the consent of B is not free. अब मैं आपके सिर पे आके बंदूक रख दूँ और बोलूँ आपको अपना मकान मेरे को बेचना है इतने इतने में, तो आप ऑफ कोर्स हाँ कर दोगे. ठीक है, in this case the consent is not free. B can later avoid the sale on the ground that he was compelled to agree on the sale and consent given was not free. So अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप बाद में easily इस चीज़ से मना कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, ये कह के कि आपके ऊपर उस वक्त कोअर्जन था, प्रेशर था, आप अनड्यू इन्फ्लुएंस में थे, या व्हाटसोएवर इज द रीज़न एंड यू डू नॉट वांट टू कैरी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ वी हैव अनलॉफुल एग्रीमेंट्स. व्हाट आर अनलॉफुल एग्रीमेंट्स? अनलॉफुल एग्रीमेंट या तो इलीगल होगा, या इमोरल होगा, या फिर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होगा, या फिर वेजर होगा. अब यहाँ पे इन तीनों का मोर और लेस सेम ही सेंस है कि ये अगेंस्ट है, या तो लॉ के, या पब्लिक पॉलिसी के, या हमारे सोशल नॉर्म्स के. ठीक है, वेजर का मतलब होता है बेटिंग. ठीक है, किसी तरीके की सट्टा लगाना, एक तरीके से कह सकते हैं. ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में. इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज टू परफॉर्म एन अनलॉफुल एक्ट, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनएनफोर्सेबल. अगर मैं आपसे कोई एग्रीमेंट कर रही हूँ कि आप जाके किसी का मर्डर कर दें, मर्डर इज इलीगल. ठीक है, सो द एग्रीमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट इज अनएनफोर्सेबल. द ऑब्जेक्ट to the agreement should not be illegal, immoral or opposed to public policy. ठीक है, in easy words, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए आपके एग्रीमेंट का, आपके एग्रीमेंट का पर्पस ऐसा नहीं होना चाहिए जो इलीगल, इमोरल या फिर पब्लिक पॉलिसी के अपोज में हो. Now again we have an illustration. A enters into an agreement with B to share the profits by giving false assurance to the public to get them a job in Singapore. ठीक है, अब मैं आती हूँ और मैं B के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ. ठीक है, आप लोगों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ कि हम लोग भैया लोगों को ऐसे एश्योरेंस देंगे कि हम उन्हें सिंगापुर में जॉब दिला देंगे और उनसे पैसे ऐंठेंगे. ठीक है, द एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स चीटिंग. ये क्या है? चीटिंग. भाई ऐसे कोई जॉब नहीं दिला सकता पैसे ऐंठ के. ठीक है, विच इज़ एन फ्रॉडुलेंट एक्ट.
सो द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल एंड हेंस वॉइड, मतलब निल है, ये काम नहीं करेगा, दिस होल्ड्स नो गुड. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल, बी वेरी डिस्टिंक्ट कहाँ पे वॉइडेबल यूज हुआ है. वॉइडेबल अभी आप लोगों के यहाँ बहुत कम जगहों पे यूज हुआ है, तो फोकस कि कहाँ कहाँ वॉइडेबल यूज हुआ है, आप कहीं भी गलती से उसकी जगह वॉइड ना यूज कर दें. As per the Indian Contract Act, agreements entered into which are against public policy of the state are said to have unlawful object and hence unlawful agreement make them unenforceable. हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ICA के तहत ऐसे एग्रीमेंट्स जो स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट हैं वो क्या है, अनलॉफुल हैं. ठीक है, इसीलिए वो अनएनफोर्सेबल हैं. A agrees to give 1,000 rupees to B as penalty if minor daughter is not given to A in marriage. This agreement is opposed to public policy and not enforceable. कौन सी public policy के अगेंस्ट है ये, माइनर मैरिज. ठीक है, चाइल्ड मैरिज के अंतर्गत ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है. ठीक है, हम पब्लिक पॉलिसी कि हम 18 साल से कम की लड़कियों की शादी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसके ऊपर आप लगाएं पेनल्टी या एग्रीमेंट करें कि हमारी लड़की की एज 18 साल से कम होगी शादी के टाइम पे, या नहीं हुई तो हम आपको ये देंगे या वो देंगे. दिस इज़ एब्सोल्युटली इमोरल एज वेल एज इलीगल. ठीक है, इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, इट इज़ अनलॉफुल एंड हेंस इट इज़ अनएनफोर्सेबल. As per the Indian Contract Act, agreement entered into by way of wager are not enforceable. ठीक है, अब ये हमारे फोर्थ पॉइंट पे आ गए, wager. ठीक है, wager is a contract where one person promises to pay the other money on happening of an uncertain future event or the other person promises to pay on the non-happening of the event. ठीक है, दो लोग शर्त लगाते हैं, अगर ये हुआ ना, अगर सचिन ने सिक्सर मारा तो मैं तुझे 10,000 दूंगा, और अगर नहीं मारा तो तू मुझे 10,000 देना. ठीक है, दिस इज बेटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, जुआ भी कह सकते हैं आप इसे, एंड दिस इज नॉट राइट. देयर इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस इन्वॉल्व्ड इन वेजर. यहाँ पे क्या होता है, कंसिडरेशन में नहीं होता, यहाँ पे प्रॉमिस और रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है. वेजर इज लाइक अ बेट. ठीक है, इजी टर्म्स में हम कह सकते हैं इट इज़ लाइक अ बेट वेयर द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट इज द कंडीशन ऑन विच द प्रॉमिस डिपेंड्स. ठीक है, अनसर्टेन है भाई, सचिन का अगला छक्का होगा या नहीं होगा, ये तो अनसर्टेन है ना, ये तो खुद सचिन को भी नहीं पता, इसके ऊपर आप बेट लगा रहे हो. दिस इज वेजर एंड दिस इज अनलॉफुल. A agrees to give 1,000 to B if India wins the match on 24th August. B agrees to pay A the same amount if India does not win the match. The agreement is wager and it is void. ठीक है, अभी तो मैच हुआ नहीं है 24 अगस्त का, हमें पता नहीं है कौन जीतेगा, हम इस पे बेट लगा रहे हैं कि अगर जीता तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा और हारा तो तुम मुझे 10,000 देना. ठीक है, दिस इज बेटिंग, दिस इज वेजर एंड दिस इज अगेन अनलॉफुल, अनएनफोर्सेबल एंड हेंस void. Now in our next class we are going to study 3 important concepts, namely discharge of contract, contingent contract and damages. I hope everything is clear. अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो let us know in the comment section. Keep on studying.